In this lecture, we are going to solve one problem which is based on sectional view, and problem statement is: figure shows a pictorial view of an object. By using first angle method of projection, draw sectional front view along sectional plane AA, top view and right hand side view. Okay, so we need to obtain the three views, that is sectional front view, top view and right hand side view. Okay, like I said, so this arrow mark always indicate the front direction. We are observing this object from this direction. So this is our front direction, top, front view, top view, right hand and right hand side view. Okay, front view, top view, right hand side view. Okay, so I will show you here. So initially we need to draw the XY line. Above XY line, as per the first angle method of projection, above XY line VP plane will come, below XY line HP plane will come. We knew that in VP plane always front view is projected, in HP plane top view is projected. Okay, in problem statement they have clearly mentioned that right hand side view, this view, right hand side view. So as per the first angle method of projection, right hand side view always drawn left of the front view. Okay, left side of the front view. So this is our right hand side view. Okay, and this is our LHSV. Okay, but as per the problem statement we need to obtain the sectional front view. Okay, sectional front view, top view and right hand side view. Okay, so initially we will draw normal front view, top view, right hand side view, and then this front view is converted into the sectional front view, because in problem statement they have clearly mentioned that we need to obtain the sectional front view. Okay, so before obtaining the sectional front view, initially we will obtain the normal front view, and then that normal front view is converted into the sectional front view. Okay, so let's begin with drawing the front view. Now if you observe this object from this direction, this is our front direction, what you will see? Okay, you will see this portion. Okay, you will see this portion. Okay, next you will see this semi-cylindrical part also, you will see this semi-cylindrical part also. Okay, next which are the hidden parts? We cannot see this two circle. Okay, assume that this circle is throughout this plate. Okay, in downward direction. Okay, so these two circles are hidden. Okay, next, so this inner circle is also hidden. Okay, so here three objects are hidden, first, second and third object. Okay, so first we will construct the front view. Okay, so first we will construct this base. Okay, so first we will construct this base, then we will draw this semi-cylindrical part. Okay, then we will show this two hidden circle, and then we will show this inner circle which is hidden. Okay, so let's begin with drawing the front view. Okay, so total length is given, as we know that in front view two dimensions are visible, length of the object and height of the object. Okay, so what is the total length of the object? You can see here from this point to this point how much, 100 mm is given. Okay, so we will start from this point. Okay, we will start from 12 and 12. Okay, so name, so this is our X, so this is our X. Okay, and this is our Y. Okay, above XY line VP plane will come, and below XY line HP plane will come. Okay, so initially take 100 mm distance. Okay, so from this side, from this point, okay, mark 12 mm. Okay, and so this is our 100 mm point. Okay, 10. Okay, from this point mark 12 mm. Okay, so what I did, so I have marked from this point to this point how much, 100 mm distance. Okay, so from this point 12 mm and from this point 12 mm, total from this point to this point 100 mm distance. Okay, and after that I have marked 12 mm from this point and 12 mm from this point. Okay, so we're done with these two lines. Okay, next, so what is the height of this line? Okay, you can see height of this line 9 mm. 9 mm is given. Okay, from this point to this point 9 mm, from this point to this point 9 mm.
9 mm, 9 mm. Okay, so we're done with this portion. Okay, next directly join these 2 points. Okay, next concentrate on this part. So what is the total height of this base? You can see here 18 mm is given here, 18 mm. So from this point 18 mm and from this point 18 mm. Okay, so we're done with this line and we're done with this line. Okay, so from this point to this point, how much distance? Okay, so you can see here 44 mm is given. Okay, from this point to this point 44 mm, and from this point to this point 44 mm. You can see here. Okay, so this is a symmetric object. One thing you have to remember, this is a symmetric object. Okay, so you can see from this point to this point how much? 44 mm, and from this point to this point 44 mm. mm, and from this point to this point 44 mm. Okay, so we're done with this portion. Okay, next, so you can see clearly 12 mm. So this remaining distance automatically will come 12 mm. Okay, so from this point to this point how much height? So 22 mm. Okay, from this point to this point 22, from this point to this point 22. Okay, now if you observe this object from this direction, so this cylindrical part will appear as a straight line. Okay, straight box. Okay, if you observe this part from front direction, so this you can see, so this cylindrical part, semi-cylindrical part will appear as a straight box. Okay, they will appear, so this cylindrical part will appear as a straight box. Don't get confused. अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट हैंड फ्रंट व्यू से, तो ये कैसे दिखने वाला है? ये जो सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट है स्ट्रेट दिखने वाला है, स्ट्रेट बॉक्स दिखने वाला है. ठीक है, तो यहां तक हमको पता है इसका लेंथ हाइट कितना है 22. ओके, नेक्स्ट यहां से यहां यानी कि टोटल इसका हाइट कितना रहेगा? रेडियस 22 दिया है, तो यहां से कितना होगा? फिर से 22 mm ऊपर. ओके, यहां से इस पॉइंट से फिर से 22 mm. तो पहले क्या करो, यहां से ना एक सेंटर लाइन मार करके ले लो. डैश डॉट डैश डॉट डैश, यू कैन एक्सटेंड द सेंटर लाइन. ठीक है, तो सेंटर लाइन का हमारा डिस्टेंस पता है, यहां से 22 है. 22 से उसका रेडियस कितना दिया है इस सिलेंडर का 22 दिया है, तो फिर से यहां से 22 ऊपर. ट्वेंटी टू. ओके, बाद में इसको सिर्फ आपको क्लोज करना है. ओके, ठीक है.
तो ये कैसे दिखने वाला है, ये सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हमको स्ट्रेट दिखने वाला है ऐसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये हमको सर्कल दिखने वाला है क्या, ये इनर सर्कल, ये सर्कल भी नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो डायमीटर 20 दिया है, ठीक है, डायमीटर 20 दिया है। तो सेंटर से यहां से 10 और नीचे 10, क्योंकि डायमीटर 20 दिया है। ओके, तो इस सेंटर पॉइंट से 10 लेना है आपको सिर्फ। ओके, सेंटर पॉइंट से 10, अबो 10, बिलो 10, ठीक है। मैंने यहां से 10 और यहां से 10, क्योंकि डायमीटर 20 दिया है, ठीक है। तो ये हिडन है, इसलिए हमको डैश लाइन यूज करना है, डैश स्पेस डैश स्पेस स्पेस। ओके, नेक्स्ट यहां पे भी डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ओके, ठीक है, ये ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट फ्रंट व्यू से देखने के बाद ये दोनों सर्कल हमको नहीं दिखने वाले, सो दीज 2 सर्कल्स आर आल्सो हिडन, सो वी नीड टू शो दिस। ओके, तो यहां से देखो कितना डिस्टेंस दिया है, सेंटर लाइन, आपको कभी भी सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का कितना है, सेंटर कितना है, यहां से 25 दिया है। ओके, यहां से 25। ओके, तो क्या करना है आपको, यहां से 25, ओके, यहां से 25, तो हमको सेंटर मिलता है इसका सर्कल का। तो हमको सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, डैश डॉट डैश डॉट डैश, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायमीटर देखो कितना दिया है, डायमीटर दिया है 10। ओके, तो रेडियस 5, तो यहां से 5 mm और यहां से 5 mm। डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ओके, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे देखो क्या बोला है, 2 होल्स डायमीटर 10 mm। 2 होल्स यानी कि कौन से, फर्स्ट होल एंड सेकेंड होल, ठीक है। 2 होल्स, फर्स्ट होल सेकेंड होल, और दोनों का डायमीटर कितना है, 10 mm है। तो यहां से फिर से 25 लेना है हमको। टेक 25 mm। ओके, मार्क द सेंटर लाइन, डैश डॉट डैश डॉट डैश। ओके, नेक्स्ट साइज डायमीटर 10 mm है, तो रेडियस 5 हुआ, तो यहां से 5 mm, यहां से 5 mm। ओके, डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ओके, तो फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। ओके, अभी हमको इसको डायमेंशनिंग करना है। तो हम क्या दिखा सकते हैं, हम इसका ओवरऑल लेंथ दिखा सकते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। बाद में डायमेंशन लाइन विथ एरो हेड। ओके, ठीक है। सेंटर लाइन, डायमेंशन का सेंटर लाइन पकड़ना है, उसके ऊपर लिखना है। तो कितना है ये, 100 mm है। ओके, और क्या दिखा सकते हैं हम ये 12 mm दिखा सकते हैं, 12 mm, ठीक है। तो 12 mm हम दिखा सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट नैरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरोज है ना, ये बाहर की तरफ दिखा सकते हैं ऐसे। ओके, नो प्रॉब्लम, ये ऑल्सो करेक्ट है। और यहां पे 12 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे 12 लिख सकते हो। ओके, एरोज अंदर की तरफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि ये नैरो है तो हम एरोज बाहर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और क्या इसका विड्थ, इसका हाँ इसका लेंथ भी दिखाना है हमको, ये भी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो एरोज हम बाहर की तरफ लेंगे ऐसे। ये मैंने ऑलरेडी आपको ना फर्स्ट यूनिट में बताया है। ठीक है, कितना है ये 12 है। ओके, और क्या दिखा सकते हैं, ये 44 भी दिखा सकते हैं हम, ये 44 है। ठीक है, ये 44 है। ओके, तो फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हुआ है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये नॉर्मल फ्रंट व्यू है। प्रॉब्लम में क्या पूछा है, सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछा है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हमारा रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू के लिए क्या करना चाहिए, जितना भी फ्रंट व्यू है हमको नीचे प्रोजेक्ट करना है। तो कौन से पॉइंट आएंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9th एंड 10th, ये सारे पॉइंट्स आपको नीचे प्रोजेक्ट करने हैं। फॉर दैट यूज द प्रोजेक्शन लाइन, सो दिस शुड बी वेरी लाइट लाइन्स। Okay, so these all lines are parallel to each other, so these horizontal lines are also parallel to each other. ठीक है, तो फ्रंट व्यू में हमको कौन से डायमेंशंस दिखने वाले हैं, एक तो हमारी लेंथ दिखेगी। ओके, और दूसरा क्या दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट का हाइट दिखेगा। ओके, लेंथ और हाइट। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में फिर से हमको दो डायमेंशंस दिखने वाले हैं, एक तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दिखेगी और दूसरा क्या दिखने वाला है, विड्थ दिखने वाला है। लेंथ हम फ्रंट व्यू से कॉपी करने हैं और विड्थ हमको दिखाना है। ठीक है, तो ये है लेंथ और ये है विड्थ। तो विड्थ मैं यहां पे लिखता हूं, सॉरी ये है लेंथ, ओके, और ये है विड्थ। ओके, ठीक है, तो टॉप व्यू से देखने के बाद हमको क्या दिखने वाला है, ये क्लियरली ये बेस दिखने वाला है, फुल बेस दिखेगा, और ये सेमी सिलेंडर भी दिखने वाला है टॉप व्यू से देखने के बाद। ओके, ये दोनों सर्कल भी हमको दिखने वाले हैं। ओके, टॉप व्यू से दिखने के बाद हमको क्या क्या दिखने वाला है, ये बेस हमको क्लियरली दिखने वाला है, ये दोनों सर्कल क्लियरली दिखने वाले हैं, ये सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हिडन क्या आएगा, इसमें हिडन ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये इनर सर्कल हिडन आ जाएगा, प्लस ये दो स्लॉट नीचे के दो स्लॉट है वो भी हिडन आ जाएंगे। ये इनर सर्कल एज वेल एज दिस टू स्लॉट्स आर हिडन इन दिस टॉप व्यू। इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप व्यू, ये आपको याद रखना है। तो जब भी टॉप व्यू ड्रॉ करते हो ना, तो मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले बेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इस बेस के ऊपर। ओके, क्योंकि इस बेस के ऊपर ये सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट माउंट किया गया है और रेस्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बेस का डायमेंशन क्या है, लेंथ कितना है, लेंथ है 100, तो लेंथ ये ऑलरेडी 100 है, तो हम यहां से कॉपी करने वाले लेंथ। विड्थ कितना है, विड्थ देखो कितना है इसका, 44 है, यहां पे दिया है, देखो विड्थ कितना है, 44, 144। तो ये 100 हो गया, और इससे नीचे 44। ओके, ये 44 है।
ओके, तो हमने बेस ड्रॉ किया है, ये बेस ड्रॉ किया है हमने। तो सबसे पहले क्या करो, ये सेंटर लाइन ड्रॉ करके ले लो। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो सेंटर लाइन, तो ये 44 है तो 22 mm लेना है आपको। ओके, 22 mm लेना है और यहां से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम? डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। ठीक है, सेंटर लाइन आपको एक्सटेंड कर सकते हो, सेंटर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या करो अभी, ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा वाला स्लॉट, ओके, सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो टॉप व्यू से देखने के बाद हमको क्या दिखने वाला है? ये फिर से एक रेक्टेंगल दिखने वाला है। ओके, टॉप व्यू से देखने के बाद हमको क्या दिखने वाला है? ये अगर हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ये सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है? हमको रेक्टेंगल दिखने वाला है। ठीक है, तो उसका लेंथ कितना रहेगा? देखो लेंथ कितना है? 12 है। तो लेंथ हम कहां से कॉपी करने वाले हैं? हम इस पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से देख रहे हैं, इस पार्ट को क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से देख रहे हैं। ओके, तो ऊपर से देखने के बाद हमको क्या दिखने वाला है? 2 डायमेंशंस दिखने वाले इसके। फिर एक तो क्या दिखेगा? इसका लेंथ दिखेगा, और दूसरा क्या दिखने वाला है? इसका विड्थ दिखने वाला है। ठीक है, लेंथ हम फ्रंट व्यू से कॉपी करने वाले हैं। ओके, और विड्थ हमको टॉप व्यू में दिखाना है। ओके, तो ये लेंथ कितना है इसका? 12 है, और विड्थ कितना है? यहाँ पे देखो विड्थ कितना है? 44 है। ओके, तो क्या करो, यहां से ये दोनों पॉइंट्स का हमने ऑलरेडी रेफरेंस लिया, लेंथ है 12 mm, तो ये आपको सिर्फ ओके हो गया। ठीक है, तो ये कैसे दिखने वाला है? हमको एक इसका रेक्टेंगल बॉक्स दिखने वाला है जिसका लेंथ कितना है? 12 mm, और विड्थ कितना है? विड्थ कितना है? 44। लेंथ 12 mm और विड्थ 44। ओके, फ्रंट व्यू में कौन सा पार्ट है? वो ये वाला पार्ट। ठीक है, लेंथ 12 mm और विड्थ 44। तो ये डन हो गया। नेक्स्ट, टॉप व्यू से देखने के बाद ये सर्कल भी हमको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, ये सर्कल भी हमको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट। ओके, तो कितना डायमीटर है इसका? इसका डायमीटर है 20। तो यहां से 10 10 10 और यहां से 10, तो ये हिडन आएगा। डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंप्लीट पार्ट हमने दिखाया, इंक्लूडिंग दिस हिडन सर्कल। ओके, नेक्स्ट, अभी ये 2 सर्कल है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो 2 सर्कल है, ओके, तो फ्रंट व्यू में कौन से 2 सर्कल है? वो ये 2 सर्कल, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल। फ्रंट व्यू से हमको वो दिखने वाले नहीं है, हिडन है, लेकिन टॉप व्यू से देखने के बाद वो दोनों सर्कल क्लियरली विजिबल है, तो हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करना है? इसका डायमीटर कितना है? देखो डायमीटर 10 है, 2 होल्स डायमीटर 10। तो हमने ऑलरेडी इसका प्रोजेक्शन लिया है, इसका डायमीटर ऑलरेडी कितना है? ये 10 है। ठीक है, तो क्या करो आप, ये जो सेंटर लाइन है ना, इसका रेफरेंस लेके यहां पे एक मार्किंग पॉइंट ले लो। ओके, ओके, अभी क्या करो, 5 mm रेडियस, ओके 5 क्योंकि डायमीटर कितना है? 10 है, तो 5 mm रेडियस लेना है। देखो पॉसिबल है क्या? देखो, हाँ, क्योंकि ये डाउट लग रहा है मेरे को तो, लेकिन हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है? फ्रंट व्यू में ये दोनों होल हिडन है, नहीं दिखने वाला, इसलिए हमने डॉटेड दिखाया, लेकिन टॉप व्यू से देखने के बाद वो दोनों सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट सर्कल और सेकेंड,
ओके, दोनों सर्कल हमने ड्रॉ किए, ठीक है। नेक्स्ट अभी पेंडिंग क्या है इसमें, और क्या पेंडिंग है, तो टॉप व्यू से देखने के बाद हमको ये दोनों स्लॉट नहीं दिखने वाले हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू में कौन से दो स्लॉट है, ये दो स्लॉट। ओके, फर्स्ट स्लॉट और ये सेकंड स्लॉट। जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे ना इन दोनों स्लॉट को, तो ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा। तो हमको क्या दिखाना है, हिडन दिखाना है, ठीक है। तो इसका इसका लेंथ कहा कितना है, 12 mm। तो ये ऑलरेडी 12 mm है लेंथ, 12 mm 12 mm, ठीक है। और इसका विड्थ कितना है, यहां से यहां तक फुल है, देखो यहां से यहां तक फुल स्लॉट है और हम ऊपर से देख रहे हैं। तो इसका विड्थ कितना है, 44 है। तो ये ऑलरेडी 44 है। तो हमको फ्रंट व्यू में कौन से दो स्लॉट है, वो फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट। लेंथ 12 mm, लेंथ 12 mm, लेंथ 12 mm, लेंथ 12 mm, ठीक है। तो क्या करना है, इसका रेफरेंस लेना है और विड्थ कितना है इसका, 44 mm। तो यहां से यहां तक डॉटेड आएगा, ये यहां से फुल। तो डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस, ठीक है। तो अभी हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हुआ है। तो आपके रेफरेंस के लिए ये लेंथ है और ये विड्थ है। ओके, अभी हमको इसको डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। जो डायमेंशन टॉप व्यू फ्रंट व्यू में मिसिंग है वो हमको टॉप व्यू में दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या दिखा सकते हैं, हम टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम इसका ओवरऑल विड्थ दिखा सकते हैं। तो विड्थ कितना है इसका, 44 है। तो विड्थ है 44। ओके, नेक्स्ट हम ये दिखा सकते हैं इन दोनों का डायमीटर। तो उसके लिए क्या, कौन सा लाइन यूज करोगे आप, लीडर लाइन। ओके, तो ये अभी नैरो सर्कल है तो एरोज आप बाहर की तरफ ले सकते हो, ऐसे अंदर की तरफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एरोज आप बाहर की तरफ ले सकते हो, ठीक है। तो 2 होल्स डायमीटर 10 mm, 2 होल्स कैपिटल में यूज करना है आपको, 2 होल्स, ओके, डायमीटर 10, डायमीटर 10। तो ऐसे आपको लिखना है ये, ओके, 2 होल्स डायमीटर 10, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, 2 होल्स, फर्स्ट होल सेकेंड होल, ओके, डायमीटर 10 mm, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, अभी हमारा पेंडिंग कौन सा है इसमें, राइट हैंड साइड व्यू, ओके। तो राइट हैंड साइड व्यू के लिए हमको यहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे, ओके, ये हमारी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट ये रेफरेंस पॉइंट है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, यहां से 45 डिग्री लेना है आपको, यहां से 45 डिग्री, ओके। ड्रॉ वन लाइन पासिंग फ्रॉम दैट एंगल 45 डिग्री, ओके। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने हैं, फ्रंट व्यू के और टॉप व्यू के। तो पहले टॉप व्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
पॉइंट एंड 6th पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की है। ठीक है, ओके, नाउ प्रोजेक्ट इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट वन सिक्स्थ पॉइंट। ओके, ठीक है, तो टॉप व्यू हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। नेक्स्ट कौन सा है? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के कौन से पॉइंट आएंगे? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड 6th पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट इज ए 6th पॉइंट। ठीक है, तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया है क्यों हम प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमको 2 डायमेंशन चाहिए। एक तो इसका विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो विड्थ हमको कहां से मिलने वाले है? विड्थ हमको टॉप व्यू से मिलने वाली है और हाइट हम कहां से कॉपी करने वाले हैं? फ्रंट व्यू से। इसलिए हमको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे इसको, ओके, जब हम इसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे राइट हैंड साइड व्यू, तो हमको क्या दिखने वाला है? हमको ये दिखने वाला है क्लियरली। ठीक है, क्लियरली ये दिखने वाला है। ओके, नेक्स्ट ये हमको क्लियरली दिखने वाला है। ये सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट है, हमको क्लियरली दिखने वाला है। ओके, ये इनर सर्कल क्लियरली दिखने वाला है। ठीक है, इसमें हिडन क्या आ जाएगा? हमारे को ये स्लॉट नहीं दिखने वाला है। ये जो स्लॉट है, ओके, ये स्लॉट हमको नहीं दिखने वाला है। अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें ना, तो ये स्लॉट हमको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ये सर्कल भी हमको नहीं दिखने वाला है, हिडन आ जाएगा। ओके, तो 2 चीजें इसमें हिडन आएगी। एक तो ये स्लॉट नहीं दिखेगा और दूसरा ये सर्कल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका विड्थ कितना है? विड्थ 44 है। ओके, एंड इसका हाइट को लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हमको कौन से 2 डायमेंशन मिलने वाले हैं? सॉरी, राइट हैंड साइड व्यू में एक तो इसका विड्थ और दूसरा हाइट। विड्थ हम यहां से कॉपी करने वाले हैं और हाइट हम यहां से कॉपी। तो विड्थ कितना है इसका? विड्थ है 44। ये तो ऑलरेडी 44 है। और इसका हाइट कितना है? 18 mm। तो 18 mm ये ऑलरेडी 18 mm है। ओके, ओके, नेक्स्ट अभी इसके ऊपर 2 पार्ट हमको हिडन दिखाने हैं। एक तो ये स्लॉट हमको हिडन दिखाना है और दूसरा ये सर्कल। ठीक है, तो स्लॉट का, तो सबसे पहले स्लॉट देखो, फ्रंट व्यू में कौन सा स्लॉट है? वो ये स्लॉट है। ओके, फ्रंट व्यू में ये स्लॉट है। अगर हम इसको यहां से देखेंगे राइट हैंड साइड व्यू से, ओके, इसको देखेंगे तो ये हमको ये स्लॉट नहीं दिखने वाला है। ओके, स्लॉट का हाइट कितना है? हाइट ये 9 mm है, हमने ऑलरेडी दिखाया है। ये कितना है? ये 9 mm है। हमने फ्रंट व्यू में डायमेंशंस में नहीं दिखाया, तो आप इसको दिखा सकते हो यहाँ पे 9 mm। तो बाद में दिखाएंगे, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कितना है? ये 9 mm है। ओके, अगर हम यहां से देख रहे हो तो ये सर्कल भी हमको नहीं दिखने वाला है और ये स्लॉट भी हमको नहीं दिखने वाला है। हम अगर यहां से देख रहे हैं तो ये सर्कल भी नहीं दिख रहा है और स्लॉट भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो स्लॉट का विड्थ कितना है? 44 है। ओके, विड्थ कितना है इसका? 44 है। ओके, और हाइट कितना है? हाइट है 9 mm। तो विड्थ ये ऑलरेडी 44 है और इसका हाइट कितना है? 9 mm है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से 9 mm है और ये 44 है, तो ये आ जाएगा डॉटेड यहां पे। डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अब ये सर्कल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो ये वाले सर्कल अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये सर्कल नहीं दिखने वाले, ये वाले सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का प्रोजेक्शन ले लो। हमने ऑलरेडी लिया है सर्कल का प्रोजेक्शन यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिया है, तो ये क्या आ जाएगी? ये सिर्फ यहाँ पे डॉटेड आ जाएगी।
डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस डैश स्पेस। ओके ठीक है, तो ये हो गया। ओके नेक्स्ट अभी इसमें पेंडिंग क्या है, ये वाला पोर्शन हमको ड्रॉ करना है और इनर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू में इसका हाइट कौन सा है 22 mm, तो यहां से यहां 22 mm लेना है हमको, ये ऑलरेडी 22 है। ओके तो फ्रंट व्यू में 22, यहां से 22। ओके नेक्स्ट इसका विड्थ कितना है, विड्थ 44 है, तो ये ऑलरेडी 44 है। ओके ये ऑलरेडी 44 है, हमको सिर्फ हाइट दिखाना है। ओके तो यहां से यहां है, यहां से यहां 22 मीन्स कहां, फ्रंट व्यू में कौन सा है वो, यहां से यहां तक। ओके यहां से यहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट 22, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ये वाला पोर्शन तो 22 है, तो ये ऑलरेडी 22 है हाइट। ओके विड्थ तो हमको ऑलरेडी मिल रही है, विड्थ कितना है इसका, विड्थ है 44, तो ये ऑलरेडी 44 है। ओके सिर्फ हमको इसको हाइट दिखाना, हाइट कितना है यहां से यहां तक 22। ओके तो चाहिए तो यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करके ले लो, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश। ठीक है, और ये आपको सिर्फ यहां से एक्सटेंड करना है इसे, तो ये हो गया 22। ओके तो ये हो गया 22। ठीक है नेक्स्ट अभी ये 44 है, तो 22 आपको सेंटर लेना है, चाहे तो ये लाइन आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी 22 है। ओके तो ये अगर यहां से एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां से, तो ये 44 है। ओके तो मैं इसका सेंटर लूंगा और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। प्लीज ड्रॉ यू एज पर द डायमेंशन, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नहीं आ सकता क्योंकि थोड़ा मैं ऑकवर्ड पोजीशन पे हूं, तो 22 लेना है आपको। ठीक है ये मेरा एग्जैक्ट 44 नहीं आ सकता, आप एग्जैक्ट ड्रॉ करो एज पर द डायमेंशन। ठीक है मेरा थोड़ा चेंज हो सकता है, आप प्लीज ड्रॉ एक्यूरेट ड्रॉ करो। ओके तो ये हमने ड्रॉ किया है। ओके ठीक है तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी ये जो इनर सर्कल है, ठीक है तो इनर सर्कल का हमको यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, इसका भी हमने प्रोजेक्शन लिया है ऑलरेडी। ठीक है तो इसमें आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसका डायमीटर कितना है 20 है। ओके तो सेंटर पॉइंट ले लो इन दोनों का 20। फ्रंट व्यू में कौन सा है वो सर्कल, फ्रंट व्यू में ये है सर्कल। ओके फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में कौन सा है, टॉप व्यू में भी ये है। ठीक है तो हमने इसका प्रोजेक्शन लिया है ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे। ओके इसका प्रोजेक्शन लिया है, सिर्फ उसको हमको ड्रॉ करना है। और टॉप व्यू में कौन सा है, ये वाला सर्कल है। ओके तो ये सर्कल, ये जो सर्कल है ना, ये इसको मैच होना चाहिए, और ये जो लाइंस है ये इसको मैच होना चाहिए। ओके ये इसको मैच होना चाहिए और ये इसको मैच होना चाहिए। टॉप व्यू में ये सर्कल है, सॉरी फ्रंट व्यू में ये सर्कल है और टॉप व्यू में ये सर्कल है। ठीक है सो वी डन विथ राइट हैंड साइड व्यू। तो जहां पे भी सर्कल है ना, वहां पे आपको सेंटर लाइन दिखानी ही है। तो डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश। ठीक है ये सेंटर लाइन हो गई। अभी यहां पे भी है सर्कल, तो यहां पे भी आपको दिखानी है सेंटर लाइन, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। ओके फिर यहां से भी दिखानी है आपको सर सेंटर लाइन, डैश डॉट डैश डॉट डैश डैश। ठीक है ओके
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी इसमें। Okay, next just you need to show the dimension to the right hand side view. You can show this height 18 mm 22 mm because ये हमने फ्रंट व्यू में नहीं दिखाया है, तो ये आप हाइट यहाँ पे दिखा सकते हो 18 22। ओके, आप इसका डायमीटर दिखा सकते हो, डायमीटर कितना है 20। ओके, एंड आप रेडियस दिखा सकते हो इस सेमी सर्कल का। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड व्यू लिखना है, टॉप व्यू लिखना है यहाँ पे, एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू। अभी यहाँ पे क्या हमको ड्रॉ करना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये जो है ये नॉर्मल फ्रंट व्यू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग सेक्शन प्लेन ए ए। ये जो आपको लाइन दिख रही है ए टू ए, दिस ए टू दिस ए, प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग सेक्शनल प्लेन ए ए। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां से कट हो रहा है, ए टू ए। ओके, ये सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए cutting plane line, okay, or section plane line. Okay, this line is called from A to A is called as a cutting plane line or section line. So इसका यूज क्या है, ये लाइन है इस ऑब्जेक्ट को कट करता है, कहां से, सेंटर से। यहां पे देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर से। ओके, यहां से। तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर से कट हो रहा है, हाफ पोर्शन निकालो एंड देन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछा है। इस एरोस की डायरेक्शन कहां है, देखो एरोस की, दोनों एरोस की डायरेक्शन कहां है, देखो इस साइड है, इस डायरेक्शन। तो ये एरोस क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इन विच कटआउट सेक्शन टू बी ऑब्जर्व्ड। ओके, तो ये एरोस कहां पे, इस डायरेक्शन पे, फ्रंट डायरेक्शन पे। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर से कट हो रहा है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मीन्स फुल हाफ पोर्शन कट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का। हाफ पोर्शन निकालो, निकालने के बाद ऑब्जर्व करो। ओके, जब आप हाफ पोर्शन कट करके ऑब्जर्व करोगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये सर्कल हमको दिखने वाला है, ये भी सर्कल हमको क्लियरली दिखेगा। जब हम हाफ पोर्शन कट करके हाफ पोर्शन निकालेंगे और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखने वाला है, ये सर्कल हमको क्लियरली दिखेगा, ये इनर सर्कल भी हमको क्लियरली दिखने वाला है, और ये भी सर्कल हमको क्लियरली दिखने वाला है। तो अभी बताओ मेरे को, यहां पे ये डॉटेड लाइन आ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कट होने के बाद ये सभी सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल, ओके, ये तीनों सर्कल हमको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हिडन नहीं है, अभी ये सभी सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल, ये जो नॉर्मल व्यू में हिडन है वो अभी हिडन नहीं रह जाएंगे, अभी वो हमको क्लियरली दिखने वाले हैं। ओके, ऑब्जेक्ट जब हम इसको सेंटर से कट करेंगे ना बाय यूजिंग दिस कटिंग प्लेन लाइन, ओके, तब क्या हो जाएगा, ये सर्कल भी दिखेगा हमको, ये सर्कल भी दिखेगा और ये सर्कल भी दिखेगा। दैट्स व्हाई सो दिस डॉटेड लाइन इज कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस लाइन लाइक दिस। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है ये कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑब्जेक्ट, हाफ ऑब्जेक्ट कट होने के बाद ये हमको क्लियरली दिखने वाले हैं सर्कल। ठीक है, तो यहां पे अभी डॉटेड लाइन नहीं आ जाएगा, डॉटेड इज कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी मेरे को ऑब्जेक्ट जहां पे कट हो रहा है वहां पे हमको क्या दिखाना है, सेक्शन लाइन दिखाना है। सेक्शन लाइन यानी कि हैचिंग लाइन। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहां पे कट हो रहा है, तो ये हाफ पोर्शन हम कट करके, हाफ पोर्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, हाफ पोर्शन कट करके सेंटर से हाफ पोर्शन रिमूव कर रहे हैं और हाफ पोर्शन यहां ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं सेक्शनल फ्रंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या कहां पे कट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहां पे कट हो जाएगा, यहां पे कट हो जाएगा, यहां पे कट हो जाएगा, यहां पे कट हो जाएगा। सर्कल छोड़ के सभी तरफ ये ऑब्जेक्ट कट होने वाला है। ओके, तो जहां पे कट हो रहा है वहां पे हम क्या दिखाते हैं, सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन। उसका एंगल कितना रहता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री एंगल लेना है, ऐसे मार्क करना है। ठीक है, और आपको हैचिंग लाइन दिखाने है। स्पेसिंग आपको सेम रखना है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। एंगल, एक बार एंगल 45 डिग्री लेने का और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाने का। ओके,
सो दिस इज कॉल्ड सेक्शनल फ्रंट व्यू। जहां पे मटेरियल कट हो रहा है वहां पे आपको सेक्शन लाइंस और हैचिंग लाइन दिखाना है। उसका एंगल कितना रहता है? एंगल रहता है कितना? 45 डिग्री। एंड स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस आपको सेम रखना है। ओके, स्पेसिंग कितना रहना है? आप 1 mm ले सकते हो, नहीं तो 2 mm ले सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने ये सर्कल के ऊपर हैचिंग क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां पे कट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो सर्कल है, हॉलो पार्ट है वो। ओके, हॉलो पार्ट है तो वहां पे कट नहीं होगा ना, इसलिए सर्कल की जगह हमने हैचिंग नहीं की है, क्योंकि ये हॉलो पार्ट है, वहां पे मटेरियल कट नहीं हो रहा है। जहां पे मटेरियल कट हो रहा है वहां पे हमको हैचिंग दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज, प्लेन लाइन हमको दिखानी है। अभी मेरे को पता है कौन से व्यूज में ये कटिंग प्लेन लाइन फुल दिखने वाली है। ओके, कौन से व्यूज में? टॉप व्यू से। अगर टॉप व्यू से देखोगे ना तो ये कंप्लीट लाइन हमको दिखने वाली है। ठीक है, तो ये हमको लाइन टॉप व्यू में दिखानी है। ठीक है, तो टॉप व्यू में ये दोनों एंड्स आपको डार्क ड्रॉ करने हैं, दोनों एंड्स डार्क ड्रॉ करने हैं। ओके, दोनों एंड्स आपको डार्क ड्रॉ करने हैं और यहां पे आ जाएगा एरोज। यहां पे एक एरोज और यहां पे एरोज। टॉप व्यू में क्यों दिखा रही है ये कटिंग प्लेन लाइन? क्योंकि ये टॉप व्यू से देखने के बाद हमको ये लाइन फुल क्लियरली दिखने वाली है, इसलिए हम इसको टॉप व्यू में दिखा रहे हैं। और यहां पे लिखेंगे हम A to A। ओके, यहां पे हम लिखेंगे A to A। ठीक है, तो अभी ये सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ है। एक आपको बात याद रखनी है, सेक्शनल फ्रंट व्यू में हिडन लाइंस नहीं आएंगे। ओके, हिडन लाइन नहीं आएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट कट करने के बाद सर्कल भी दिखने वाला है, ये भी दिखने वाला और ये भी दिखने वाला, इसलिए इसमें हिडन लाइंस नहीं आने वाले। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू ऑब्टेन द सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू।